एक्चुअली माइग्रेशन एजेंट, लॉयर, मारा आईडी, आई थिंक जो ये टर्म्स बहुत यूज़ होती हैं, ये इनमें क्या डिफरेंस क्या है? Okay, first I'll start with a registered migration agent, जो मैं हूँ. Now to become a registered migration agent, you have to first do a graduate diploma in migration law. That's like a 1-year diploma, graduate diploma. And only 4 universities offer that diploma in Australia. And to become eligible for that diploma, you need to be an Australian citizen. And you need to be able to show a good academic standing from your previous studies, or if you have been working for a very long time, you want a career change, then also you need to be able to prove that you are a person of sound character and so on and so forth, and then you become eligible. चलो 1 साल का वो हुआ. उसके बाद you have to pass something known as Umara exam. Now there are 3 constituents to this exam. One is an oral exam, then 2 are written exams. Now, कहने को they're very small things, but those exams are actually tough. Those exams test your entire knowledge of the migration law. तो आपने 1 साल में जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो आपने ट्रेनिंग की है, they are again tested. And then there's a third thing that you need to achieve IELTS academic में 7.5 at least. अच्छा. Or you need to be able to show that you have minimum of 3 years of Australian study. That is above bachelor's level. So it's like to become a registered migration agent, it's not like anybody can get up and become it. It's a 2.5-3 year process, and you get tested at every point. Trust me, you get tested at every point. कोई भी खोल के देख लो, उमारा एजेंट को उमारा की वेबसाइट पे जाओ एंड यू लुक एट द पास परसेंटेज कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया था और कितने पास हुए हैं. उसी से आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा कि कितना पास करते हैं. उमारा के एग्ज़ाम को कितना पास करते हैं. द एग्ज़ाम इटसेल्फ इज़ नोन एज कैपस्टोन एग्ज़ाम. तो कभी किसी को क्यूरोसिटी हो ना कि कितने लोग पास करते हैं, बस ये सर्च करो कैपस्टोन पास एग्ज़ाम परसेंटेज, चेक करना, फिर अपने आप पता चल जाता है कि कितने जा रहे हैं और कितने गिर रहे हैं. So, and then the second thing I would come to is lawyer. Lawyer कौन होता है? To become a lawyer, like a certified lawyer, you need to have a bachelor's degree in law from Melbourne or Victoria University or any of the big universities in Australia. तो वो basic law degree जो होती है, वो basic law degree होती है. और मैं यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता, कि अगर आपने बेसिक लॉ डिग्री भी की हुई है ना, तो एक्चुअली प्रैक्टिस माइग्रेशन लॉ यू नीड टू हैव ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ माइग्रेशन लॉ. Even a plain lawyer cannot practice migration law unless or until he has that graduate diploma. तो वो BA LLB टाइप्स, BA LLB हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा करना पड़ेगा माइग्रेशन लॉ करने के लिए. अगर आप कोई भी और लॉ पकड़ते हो तो उसकी स्पेशलाइजेशन और उसकी सुपरवाइज्ड आपको प्रैक्टिस चाहिए 2 साल की. इसको करने के लिए आपको वो माइग्रेशन लॉ का वो सर्टिफिकेट भी करना पड़ेगा, और आपके बाद उसके बाद आपको वो सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. तो मतलब कोई प्लेन लॉयर भी नहीं कर सकता ये काम. तो तभी लोग जब सोचते हैं ना कि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट तो क्या है, ऐसा नहीं है. माइग्रेशन लॉ की स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही इन्हीं के पास होती है. तो और जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं उन्हीं के पास मारा आईडी होती है. और ये मारा आईडी इज़ वन ऑफ द, आई वुड से, द कॉर्नर स्टोन ऑफ एक्चुअली आइडेंटिफाइंग योर मारा एजेंट, बिकॉज दिस इज़ रिन्यूड एवरी ईयर. Umara keeps an extreme check on who your Mara ID. They check who is that person, if that person is putting the correct files or not, the integrity of that person, the integrity of the files that person is putting, and so on and so forth. So it's a licensed profession. It's like just like a GP has their license, a dentist has their license, a lawyer has their license, registered migration agents have their license. So that's how it is. तो एग्जैक्टली जो जैसा आपने बताया, आई थिंक इट्स नॉट ईजी जैसे साउंड होता है. कई बहुत ईजीली इस चीज़ को बोल देते हैं, बट कई मे बी दे यूज़ लॉयर टर्म बहुत ऑफ्टन. इज़ दैट अ रीज़न? क्योंकि वो थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी तो जुड़ती है, बट थोड़ा सा फैंसी और बड़ा वो साउंड करता है कि मैं लाइक आई एम नॉट एजेंट, मैं या वो न्यू कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं लॉयर हूँ. बट एक्चुअल में अगर उनके पास मारा आईडी या ऐसा, पता कैसे लगेगा किसी को? बहुत, इट्स वेरी इजी. यू जस्ट गो ऑन गूगल, टाइप सर्च उमारा agent. Okay, so you'll get this page, like first or second आपको मिल जाएगा, and that will say that search your Mara agent. So you'll have 5
वहाँ पे 5 आपको सर्च थीम्स मिलती हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अपना पर्सन का लास्ट नेम भी डाल सकते हो, फर्स्ट नेम डाल सकते हो, आप उसकी मारा आईडी डाल सकते हो, आप उसका बिजनेस नेम भी डाल सकते हो। उसमें से कुछ भी पता आपको, ठीक है ना, क्या पता आपको मारा आईडी ना पता हो, सिर्फ नाम ही पता पूरा, वो डाल दो। अगर आपको पूरा नाम नहीं पता, आपको फर्स्ट नेम भी पता है, वो भी डाल दो, उससे भी निकल आएगा। उसका साथ बिजनेस नाम पता है ना, बिजनेस नाम डाल दो, उससे भी निकल आएगा। अगर उसके पास है तो वहाँ वो वहाँ आ नेम जाएगा, अपीयर होना चाहिए। अगर कोई आपको कह रहा है ना कि मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ, तो वहाँ पे उसकी रिकॉर्ड आना चाहिए। और लाइक मैंने पहले कहा था, हर साल रिन्यू होता है ये। और कई लोग ऐसे बहुत, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट देयर आर मेनी पीपल इन दिस दैट दे डोंट रिन्यू इट और दे लेट इट लैप्स, and but they are still putting their Mara IDs as their email signatures. But why Like- is that? वो renew क्यों नहीं कराते? Is there a cost और आपको There कुछ is a cost, and there is something known as continuous professional development, like engineers do, like IT accountants do, like IT people do. We also have to have professional development hours every year, and we have to pay for that license to get renewed every year. so just to avoid that cost या थोड़ा Sometimes बहुत वो people do that, lazyपन sometimes lazyपन, sometimes inquiry चल रही होती है, sometimes they just don't want to work anymore, sometimes ऐसे भी होता है they don't want to work anymore, and that's a pretty valid thing. yeah that's pretty valid. But just out of curiosity, अगर कोई भूल गया और उसने रिन्यू नहीं कराया, इज देयर अ विंडो कि इतने टाइम तक वो There रिन्यू is a window, and then you have to actually contact Omara, and then you have to tell them your reasons, that what happened, what was your previous ID, why you couldn't renew, and so on. And that becomes a long lamba chauda kahani, and then there'll be emails back and forth, and then it's up to Omara to actually give you the license or not. It's not in your hands, it's in their hands. वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंडिया में ये चीज़ कैसे वर्क करती है? यहाँ पे तो इतनी स्क्रूटनी है, इतने आपने बताया। इंडिया में आई एम श्योर ये सब तो होएगा नहीं, होता क्योंकि है। हर गली में एक एजेंट है। That is the reason people call themselves lawyer यहाँ पे, and they don't call themselves agent, because इंडिया में जब आप ये कर रहे होते हैं ना, तो you get that reputation कि तो इमिग्रेशन एजेंट ही है। तो बट व्हाट हैपन्स इज़ कि जो इमिग्रेशन एजेंट इंडिया वाला है ना, वो आपको पहली एजुकेशन की डिग्री तो उसके अंदर तो घुसा देगा, लेकिन उसके बाद की कहानी कौन बता रहा है? ठीक है ना, आप यहाँ आ रहे हो, अपने परिवार के 70-80 लाख खर्च कर रहे हो, अपने भी खर्च कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या, वो 2-2.5 साल के बाद क्या, फिर आप कभी कहीं कोई एजुकेशन उठाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। अगर आप यही चीज़ करने के बजाय स्टार्टिंग से एक मारा एजेंट के पास ही जाओ, और अच्छे मारा एजेंट के पास जाओ जिसको नॉलेज हो, ठीक है, तो वो ना आपके माइग्रेशन जर्नी ना बहुत स्मूथ बना देगा। मतलब ये लगा लो कि जो पीआर या जो टीआर आपको आनी है 10 साल बाद, वो आपको 5 साल में भी दिलवा सकता है। आपकी ज़िंदगी के कितने ज़रूरी साल बचा लेगा, क्योंकि मोस्टली लोग कब आते हैं, जब 18 के हो चुके होते हैं या 25 के हो चुके होते हैं, जो आपके बेसिक एकदम प्रोडक्टिव ईयर्स हैं लाइफ के, प्राइम ईयर्स हैं, वो आपने स्ट्रगल में ही निकाल दिए। तो फिर जब आप पीआर हो जाते हो तो कितना लेट होते हो, कितनी स्टोरीज़ हैं हमारे पास कि 10 साल लग गए, 15 साल लग गए, ये हो गया, वो हो गया, ये गलत कर दिया वो, क्योंकि एजुकेशन कंसल्टेंट्स के पास जाते रहे ना बार बार। वो हैं एजुकेशन कंसल्टेंट्स या हैं वो इमिग्रेशन एजेंट्स, दे आर नॉट migration journey specialists. Right. You know, if I had to completely sum up who registered migration agents are, they are your migration journey specialists. Nice. Okay, so if you want to go from point A to point B with the least amount of hassle and left and right, go to a registered migration agent.